students, in my previous video, I had taken up the poem The Village Schoolmaster by Oliver Goldsmith. So today's video is in continuation with the previous one. Full well they laughed with counterfeited glee at all his jokes, for many a joke had he. Full well the busy whisper circling round conveyed the dismal tidings when he frowned. See, in the previous stanza, I had told you people that the students they have a very special relation with their teacher. Even they are able to just make out about the mood of the teacher. They can very well tell you the mood of the teacher just by looking at his face. And if the teacher is strict, especially, they are in a mood to please him. So here, when the poet was telling us about his teacher, he says that the students they always used to laugh with whatever jokes the teacher cracked. Though the teacher was very strict to look at, but he had many jokes, and rather he had a store of jokes. And when he used to crack them, the students burst out in fake laughter under the pretext that the jokes were awfully hilarious. Just to impress the teacher, that is the only reason. Like, one cannot laugh much about on a joke which he had already listened, but here the students wanted to impress their teachers. So whenever the teacher used to crack any joke in the class, they used to laugh, though their laughter was fake, yet they used to laugh aloud. And there were plenty of jokes the teacher used to crack, which the teacher used to crack in the class. So they used to laugh at that. Full well the busy whisper circling round conveyed the dismal tidings when he frowned. And the students had become so observant that they just by looking at the face of the teacher, when they saw a frown on his forehead, they circulated the gloomy news throughout the classroom in an undertone. That means whenever the teacher was in a foul mood, the news very soon got spread among the students. Yet he was kind, or if severe in aught, the love he bore to learning was in fault. But on the whole, the teacher was very kind. He appeared to be serious, he appeared to be strict. If in aught, if in anything he appeared to be strict, it was just because he was very much devoted to learning. So if something tried to hamper the progress of learning, then he used to be very strict. The village all declared how much he knew. 'Twas certain he could write and cipher too. The villagers had very high opinion about the teacher, and they were unanimous in their opinion that the teacher really was an erudite man. He was a very learned man. And it was also the opinion of the villagers that the teacher could write and also work out sums in arithmetic. So as we people know, the villagers are very simple, innocent kind of people, and they very soon get awed or impressed by a person who has even a little bit of knowledge. So here the teacher was of course a learned fellow. So definitely, surely, the villagers were very much impressed by his knowledge. Lands he could measure, terms and tides presage, and even the story ran that he could gauge. In arguing too, the parson owned his skill, for even though vanquished, he could argue still.
Now, again, the qualities of the teachers have been very beautifully highlighted in these lines. The villagers were of the opinion that he was very intelligent, the teacher was very intelligent, as according to them, he could survey lands, forecast weather, and tides. Besides this, he was able to measure the content of a vessel, and he was very good at debating. Even the parson of the village, he also approved of his skill in debate. Even if he got defeated, the schoolmaster would keep on arguing. This was a special quality. That means he never just accepted his defeat in debates. He went on with his arguments whenever he was debating with someone. And the village parson, the next important person, or rather one of the most important persons of a village, he even approved of his skill as a debater. So let's have the whole thing in Hindi. Full well they laughed with counterfeited glee. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि टीचर और टॉट का एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन होता है, और बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने टीचर का चेहरा पढ़ना जानते हैं। तो टीचर अगर सख्त है तो उसको इम्प्रेस करने का, उसको खुश करने का जो बच्चों के अंदर जो एक सहज बाल बुद्धि होती है, उसके तहत और भी ज़्यादा उनके अंदर इच्छा होती है। अगर टीचर सख्त है तो उन्हें इम्प्रेस करने की इच्छा और भी ज़्यादा कह सकते हैं तीव्र होती है बच्चों के अंदर। तो यहाँ जैसा कि शुरुआत में ही पोएट ने हमें बताया कि जो टीचर थे उनके वो थोड़ा सा सख्त मिजाज थे, तो बच्चे जो थे वो उनके एट ऑल हिज जोक्स, उनके हर चुटकुले पर फुल वेल दे लाफ्ड, बहुत ज़ोर से हंसा करते थे। विद काउंटर फीटेड ग्ली, काउंटर फीटेड मतलब फर्जी, जाली, नकली, मतलब बार बार वही चुटकुला सुनने से आपको कितनी हंसी आ सकती है, लेकिन अगर आपको किसी को खुश करना हो तो आप ज़बरदस्ती गला फाड़ कर हंसेंगे। तो यही यहाँ पर बच्चों के साथ भी था कि टीचर जो भी चुटकुले सुनाया करते थे, बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसा करते थे। हंसी उनकी वो नकली थी, लेकिन वो हंसा ज़ोर ज़ोर से करते थे। फॉर मैनी अ जोक हैड ही, और गुरु जी के पास खूब सारे चुटकुले थे सुनाने के लिए, तो बच्चे उनके सभी चुटकुलों पर खूब ज़ोर से हंसा करते थे। हालांकि उनकी वो हंसी काउंटर फीटेड थी, काउंटर फीटेड यानी नकली थी, फर्जी थी। फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड conveyed the dismal tidings when he frowned, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे जो हैं वो टीचर का चेहरा पढ़ना जानते हैं। तो जैसे ही गुरुजी के चेहरे पर फ्राउनिंग आती थी, मतलब उनके माथे पर सलवट पड़ती थी, वैसे ही पूरे स्कूल में ये खबर हो जाया करती थी, यानी चारों ओर जो ये राउंड था, ये गोला सा घूम जाया करता था बच्चों के बीच में, विस्पर का, कानाफूसी का, कि आज जो है डिसमल टाइडिंग्स हैं, आज जो है दिन खराब है, आज थोड़ा सा गुरुजी नाराज़ हैं। उनके चेहरे पर, उनके माथे की लकीरें, उनकी सलवट, माथे पे आई हुई सल को देखकर ही बच्चों को ये पता चल जाता था कि गुरुजी का आज मूड अच्छा नहीं है, और ये खबर हाथों हाथ फैल जाया करती थी बच्चों के ग्रुप में। येट ही वॉज काइंड, पर पोइट कहते हैं कि वो दयालु थे। हालांकि चेहरे से वो बहुत सख्त लगते थे गुरुजी, लेकिन असल में वो बहुत दयालु थे। और इफ सिवियर इन ऑट एनीथिंग, और अगर वो सिवियर थे किसी चीज़ में, अगर वो सख्त थे किसी चीज़ में, द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट, तो उसका कारण था उनका पढ़ाई के प्रति, ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जो उनका प्रेम था, यानी नॉलेज को हासिल करने के लिए उनका जो रुझान था, झुकाव था, जो प्रेम था, उसकी वजह से उनके अंदर सख्ती थी। जाहिर बात है वो एक टीचर थे और अच्छे टीचर थे, तो जब वो देखा करते थे कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के रास्ते से भटक रहे हैं, तो उन्हें सख्ती करनी पड़ती थी, और यही एक अच्छे टीचर की पहचान भी है।
तो ये उनका गुण था कि भाई वो वैसे तो बहुत दयालु थे, और अगर वो सख्त थे भी तो उसका कारण ये था कि वो ज्ञान को, पढ़ाई को बहुत पसंद करते थे। The village all declared how much he knew. 'Twas certain he could write and cipher too. सारे गांव वाले इस बात को जानते थे, मतलब डिक्लेयर करते थे, यानी आपस में इस चीज़ को चर्चा करा करते थे, या एक तरह से घोषणा करते थे, या जानते थे, या एकजुट थे इस बात में कि जो गुरु जी थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। "'Twas certain he could write and cipher too." गांव वालों को इस बात का पक्का विश्वास था कि गुरुजी बहुत अच्छा लिख पढ़ लेते हैं, और साथ ही साथ उनको गणित की भी नॉलेज है। तो ये भाई गांव का अगर हम बात करें, ग्रामीण परिवेश की, तो लोग बहुत सीधे साधे भोले से होते हैं और बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं किसी की भी नॉलेज से। और यहाँ तो गुरुजी वैसे भी पढ़े लिखे थे, तो गांव वाले बड़ा सम्मान किया करते थे उनका। और उनका ये ख्याल था कि भाई गुरुजी जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, और उनको इस बात से बड़ी मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उन लोगों को वो इम्प्रेस्ड थे इस बात से कि गुरुजी लिख पढ़ तो पाते ही थे, साथ में गणित की भी नॉलेज थी उनको। Lands he could measure, terms and tides presage. गुरु जी जो थे वो ज़मीन भी नाप लिया करते थे, और लोगों को मौसम और क्या कहेंगे ज्वार भाटा के बारे में भी वो पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया करते थे। भाई शहरों में तो देखो इतना ज़्यादा गुरु का सम्मान अब नहीं रह गया है, लेकिन गांवों में अभी भी गुरु जी को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और आपको ये, आप में से कईयों को तो पता भी होगा, नहीं तो मैं बता दूं आप लोगों को कि गुरु जी फिर वहाँ पे सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहते। गांव वाले अपनी हर छोटी बड़ी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, छोटी बड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, देश दुनिया की खबरों पे चर्चा करने के लिए गुरु जी के पास आते हैं। ये अभी भी है, ये चीज़ें बदली नहीं है अभी भी। ये कह सकते हैं एक ब्यूटी है इस प्रोफेशन की, इस पेशे की खूबसूरती है कि गुरु जो है उसको बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और उनको ये माना जाता है कि ये सिर्फ इस किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनियावी ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है गुरु जी को। तो लोग गाँवों में अक्सर उनके पास चर्चा करने के लिए आते हैं, सलाहें लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों का ऐसा मानना था, गांव वालों का ऐसा मानना था कि जो गुरुजी थे वो ज़मीन भी नाप लिया करते थे, और भविष्यवाणी भी कर दिया करते थे मौसम और ज्वार के बारे में। एंड इवन द स्टोरी ran that he could gauge। और लोग तो यहाँ तक कहा करते थे कि वो जो है ये भी बता दिया करते थे कि जो शिप आ रही है, जो जहाज़ आ रहा है किनारे पर, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मतलब एक तरह से ज्योतिषी तक माना जाता था गुरुजी को वहाँ पे। इन आर्ग्यूइंग टू द पार्सन ओन्ड इज स्किल। और उनसे बढ़िया वाद विवाद कोई नहीं कर पाता था, ये भी लोगों का मानना था। मतलब डिबेट में भी, वाद विवाद में भी गुरुजी का कोई सानी नहीं था। और यहाँ तक कि गांव का जो पार्सन था, जो कह सकते हैं एक तरह से क्रिश्चियंस के जो पुजारी हुआ करते हैं, वो भी इस बात को मानते थे कि भाई वाकई में गुरु जी के अंदर ये कुशलता भी है। फॉर इवन दो वैंक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल। यहाँ तक कि गुरु जी कभी हार नहीं मानते थे, वो वैंक्विश्ड नहीं फील करते थे, डिफीट नहीं एक्सेप्ट करते थे। वाद विवाद में गुरुजी चाहे हारने लग जाएं, उसके बावजूद वो अपनी बात को कहना जारी रखते थे। वो अपना जो जो कह सकते हैं बातचीत, जो वाद विवाद था, उसको जारी रखा करते थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गांव वालों, ये हालांकि ये कह तो पोइट गांव वालों के नज़रिए से रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पोइट की खुद की फीलिंग्स हैं, सामने आ रही हैं अपने टीचर के बारे में, कि उनका जो मानना था पोइट का कि वो उनके जो टीचर थे वो वाकई में बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, और गांव में बड़ी सम्मानित पोजीशन थी उनकी। आज के लिए इतना ही। इस कविता का अगला हिस्सा मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगी।